ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ بورے والا میں لاہور روڈ پر تیز رفتار کار نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکلوں کو کچلتے ہوئے درخت سے ٹکرا گئی، جبکہ کار کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں اور لاشوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گگو منڈی پولیس زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کا عمل شروع کر کے حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خانیوال میں 15L روڈ کراس کرتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق کی شناخت 20 سالہ محمد بوٹا ولد خالد کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جرن میں تھانہ بسال کی حدود میں پہاڑ سے لکڑیاں کاٹتے کے تنازع پر جھگڑا۔ مٹیال گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ جہلا ریلوے اسٹیشن کے قریب پہاڑ سے لکڑیاں کاٹنے کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے FIR درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ گجرانوالہ FIA کی کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری ایجنٹ گرفتار کر لیا گیا۔ اشتہاری ایجنٹ محمد زہیب کو ڈسکا سے گرفتار کر لیا۔ ملزم شہری کو غیر قانونی طور پر اسپین بھجوانے میں ملوث تھا اور اس نے ایک شہری سے 16 لاکھ روپے ہتھیائے۔ ملزم نے متاثرہ شخص کو سینیگال براستہ دبئی، کینیا اور سمندر کے راستے یورپ بھیجنے کی کوشش کی، مگر شہری نے سفر سے انکار کر کے وطن واپس آ گیا۔ FIA نے ملزم سے فون اور دیگر شواہد برآمد کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سمڑیال میں جعلی دستاویزات پر ڈیپورٹ ہونے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔ سمڑیال سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن حکام کی کارروائی میں عمان سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر آفتاب احمد گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا کہ ملزم نے عمان میں ایجنٹ یوسف موجی کے ذریعے پرتگال کا جعلی ویزا حاصل کیا تھا۔ عمانی امیگریشن حکام نے اسے گرفتار کر کے 3 ماہ سے زائد قید میں رکھا اور 200 غیر عمانی ریال جرمانہ عائد کیا ہے۔ بعد ازاں اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کے حوالے کر دیا گیا۔ لیاقت پور میں جعلی ڈاکٹر نے 14 سالہ لڑکے کو موت کی نیند سلا دیا۔ ڈاکٹر نے لڑکے کو غلط ڈرپ لگائی اور وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ لیاقت پور کی گنجان آباد فوجی کالونی جو DDHO کے دفتر سے صرف چند گزوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ فوجی کالونی میں نامور عطائی جعلی ڈاکٹر محمد اشفاق احمد عطائی کے غلط انجیکشن نے قادریہ کالونی کے محنت کش مزدور اختر حمانی کے 14 سالہ لڑکے کی جان لے لی۔ والدین کے مطابق بچے کو معمولی سا بخار تھا جسے عطائی ڈاکٹر نے غلط ڈرپ لگائی، جس سے بچے کی جان چلی گئی۔ بچے کی موت کے بعد عطائی ڈاکٹر اپنے موت گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا، جبکہ ورثاء نے الزام عائد کیا کہ DDHO بھی عطائی کے خلاف کارروائی سے گریزا ہے۔ ورثاء نے عطائی اشفاق احمد کے خلاف تھانہ میں کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ عارف آلہ میں تاجر کی ہلاکت کا معاملہ، میونسپل آفیسر سمیت 4 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔ بلدیہ دکانوں کے کرایہ جات کی نیلامی کے معاملے پر میونسپل کمیٹی کے آفیسر نے عملہ سمیت جناح چوک کے تاجر کو دکان سیل کرنے کے لیے دھمکایا۔ بلدیہ عملہ نے تاجر کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کی دھمکی بھی دی۔ اس کشمکش کے دوران انہوں نے تاجر کو دھکا دیا جس سے وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا اور اس کا دل رک گیا۔ تاجر موقع پر ہی جاں بحق۔ مقتول کے بھائی کی درخواست پر میونسپل آفیسر ریگولیشن سمیت 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR میں قتل کی دفعات 302 بھی شامل کی گئی۔ یہ عملہ ہمیں دوبارہ آگے ہراسمنٹ کرتا ہے، جس طرح یہ کل انہوں نے بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے جو بندوں کو جرمانے جات کیے ہیں بلا وجہ، اور یہ ہم کسی صورت بھی ان کے اس اقدام کو، اس رویے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم تاجر ہیں، ہم معزز شہری ہیں، یہ جس طرح کی انہوں نے بد اخلاقیاں کل کی ہیں وہ بتان سے یہ گالیاں دیتے رہے ہیں۔ اس کے خلاف تمام تاجر برادری اکٹھی ہے اور انشاءاللہ کل تمام کاروبار احتجاجاً بند رہیں گے اور کوئی بھی تاجر آدمی کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ پسرور میں تھانہ صدر کے علاقہ دولہوالی میں چند ماہ قبل قتل کا کیس، ملزمان مدعی پارٹی کو ہراساں کرنے لگے۔ متاثرین کے مطابق فرنٹ ڈیسک پر مامور اہلکار نے درخواست کو ٹیگ کرنے سے انکار کر دیا۔ DSP پسرور کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تھانہ ہی آپ کے گاؤں میں نہ بنوا دوں۔ شہری سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 506 کا ملزمان پر
मुकदमा दर्ज है। कत्ल का मुलजिम जेल में है, कुछ मुलजमान बरी हो चुके, कुछ जमानत पर हैं। आज से 9 माह पहले 18 मई को मेरा भतीजा कत्ल कर दिया गया है और वो मुकदमा मुलजमान के ऊपर चलता रहा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती रही और अभी 2 जनवरी को जब मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई तो मुलजमान ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म जबर और हमारी धमकियाँ और हमें लाइफ थ्रेट्स देना शुरू कर दिए और हमें ये कहते हैं कि आप सुलह कर लें और मुकदमे की पैरवी को छोड़ दें। फाजिलपुर में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही लालगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर रवाना कर दिया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कबीरवाला थाना हवेली को रंगा की हदूद में मुकदमा दर्ज करवाने की रंजिश में शहरी ने बेवा औरत के घर को आग लगा दी। कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। गुज़श्ता दिनों मुलजिम ने खातून से मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश की, जिसका मुकदमा थाना हवेली को रंगा में दर्ज हुआ है। इसी रंज की बिना पर मुलजिम अमजद ने खातून के भाई साग जट को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक़्वे का मुकदमा भी थाना हवेली को रंगा में दर्ज किया गया। मुलजिम ने खातून के घर को आग लगा दी। मुलजिम अबूरी जमानत पर था और मुसलसल खातून और उसके भाई को धमकियां दे रहा था। इससे पहले भी मुलजिम कई अफराद को लड़ाई झगड़ों में छुरियों के वार करके जख्मी कर चुका है। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ और मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है। टोबा टेक्सिंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरी को 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोककर असलहे के जोर पर 25,000 रुपये सोने की अंगूठी, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। 15 पर कॉल की और मौसूल होने पर SHO थाना सिटी टोबा नदीम जट ने मुलजमान का ताक़ुब शुरू किया तो मुलजमान मोटरसाइकिल फेंक कर करीबी सरसों की फसल के खेत में छुप गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजती खुद इख्तियारी के तहत जवाबी हवाई फायरिंग की कुछ देर बाद फायरिंग रोकने के बाद सर्च ऑपरेशन करने पर 2 मुलजमान अपने ही साथी के फायरिंग से जख्मी हो गए, जो कुछ देर बाद शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए, जबकि उनका एक साथी डाकू फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। शेखपुरा में मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाला नौजवान सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेखपुरा के थाना सदर के इलाके गांव मरजौर कम और इसका रिहायशी नौजवान अरसलान मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया। अरसलान 5 माह कबल यूरोप जाने के लिए अपने घर से निकला था और गैर शादीशुदा था। वो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था, मगर एजेंट के हाथों लालच में आकर अपनी जान गंवा बैठा। अरसलान के 4 भाई और 5 बहनें हैं, उनकी मैयत को सुपुर्द खाक कर दिया गया। डायमंड में हुकूमत की जानिब से दालों की कीमतों में नुमाया कमी के असरात आवाम तक नहीं पहुँच पाए। दुकानदार वही पुराने रेट वसूल कर रहे हैं। ग्राहकों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से महंगाई में नुमाया कमी के इकदाम के तहत दालों और घी की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन चंद ज़ख़ीरा अंदोज़ और गरां फरोशों ने रेट्स में अभी तक कमी नहीं की। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक दाल चना की कीमत 280, दाल मसूर 260, दाल माश दिल्ली अवल दर्जा 460 रुपये, दाल मूंग 385, काला चना मोटा 290 रुपये, सफ़ेद चना मोटा दर्जा अवल 310 रुपये जारी किए गए हैं, लेकिन इन्हें तमाम दालें 50 से 100 रुपये इजाफी कीमत पर मिल रही हैं। दुकानदार पुराना स्टॉक का बहाना बनाकर मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नए सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दालों की फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए, ताकि हुकूमत की जानिब से महंगाई के खिलाफ किए गए इक़दाम के समरात आवाम तक पहुँच सकें। माश की दाल, मूंग की दाल सब 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक सस्ती हो गई हैं, लेकिन रायवंड में कोई भी दुकानदार रियल लिस्ट के मुताबिक दालें देने को तैयार नहीं। दालां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਦਾਲ, ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸਰਾਂ ਦਾਲ 50 रुपए ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 रुपए तक सस्तियां हो गई ने। दुकानदार रेट सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें मुहैया नहीं करते। जंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दीरानी प्रोग्राम के तहत 75 जोड़ों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर हर जोड़े को 1 लाख रुपये सलामी और जहेज़ का सामान दिया गया। मज़ीद देखेंगे रफ़ीक खान की रिपोर्ट। जंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की धीरानी प्रोग्राम के तहत जंग में 75 जोड़ों इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सुहेल शौकत समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आज 75 बेटियाँ रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो रही हैं। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 अज़ला में धीरानी प्रोग्राम का फेज़
1 मुकम्मल कर चुके हैं और 15 फरवरी तक हम फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। दूल्हा और दुल्हनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। हम सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी शादी करवाई है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और जहेज का सामान दिया गया। रफ़ीक खान, ABN न्यूज़, जंग। राजनपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने पहली मरतबा 2 रोज़ा आलमी सकाफती वर्सा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक ने किया। कॉन्फ्रेंस में मौरख़ीन, मुहक्किकीन और माहिरीन ने शिरकत की। इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए हाथ से बनी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें ख़वातीन और तलबात ने भी दिलचस्पी ली। प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद ने ज़िला की तारीखी अहमियत पर गुफ्तगू की, जबकि तारीखदान ममुना बेग और प्रोफेसर डॉक्टर बनवास मोनस ने इलाके की जियोग्राफाई और तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। प्रेस क्लब बुरेवाला में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी की शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन PCLC व ज़िला वहाड़ी चौधरी सुहेल साबिर थे, जिन्होंने ABN न्यूज़ की कामयाबी को सराहा और मज़ीद तरक्की के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ABN न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में सहाफ़त में अपना मकाम बनाया और अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। पिंड दादन खान में ABN न्यूज़ चैनल की दूसरी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उस्ताना आलिया लैला शरीफ के साहबजादा अलीम रसूल आरिफ, सदर तहसील प्रेस क्लब मलिक ज़हीर रवान और नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान मलिक मसूद अहमद ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इसमें अंजुमन ताजरान लिला शरीफ, अंजुमन ताजरान टोबा के नुमाइंदों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। साहबजादा अलीम रसूल और मलिक ज़हीर रवान ने कहा कि ABN न्यूज़ चैनल ने 2 सालों में अपनी मकबूलियत हासिल की और पिंड दादन खान में पहले नंबर पर हैं। दीगर शहरों की तरह चौक मतीला प्रेस क्लब में भी ABN न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों मलिक शफ़क़त अली मेतला, राना अमजद रियास मेतला, यूनस याकूब, आबिद खान पांदा, मलिक इशफाक आमिर मेतला और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रोज़नामा औसाफ अपनी कारकर्दगी की बिना पर बुलंदियों को छू रहा है। औसाफ ग्रुप पाकिस्तान का मजबूत तरीन ग्रुप बन चुका है। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर रात को हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। इस हमले से मुतालिक आपको आगाह करें, बन्नू में पुलिस चौकी पर यह हमला हुआ है और यह हमला रात को हुआ। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद पुलिस एहलकारों में ज़ियाउल्लाह और रहीमुल्लाह शामिल हैं। पुलिस की इस चौकी पर दहशतगर्दों का 3रा हमला है। फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में पुलिस और अस्करी हुकाम के लवाकिन ने भी शिरकत की। शोहदा के जैसे खाकी को तदफीन के लिए अपने आबाई इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौकी पर ख़वारिज के हमले की मज़म्मत शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तनावल के आबाई गांव वादी क्लस खुमाड़ी को जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों ने हुकूमत से रोड की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। देखेंगे चंगेज़ खान की रिपोर्ट। रियासती अम के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद तनावल से मुंतखब होने वाले पहले MPA मोहम्मद यूसुफ तनोली के आबाई गांव वादी कलिस को जाने वाला रोड खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वादा रहे कि मोदा से की कलिस खमाड़ी के 20 गाँव को सेहत की सहूलियात देने वाला हॉस्पिटल BHU खमाड़ी भी इसी रोड पर वाक़या है, जो कि यूसुफ तनोली मरहूम ने एहलियान तनावल को 35 साल पहले तोहफा दिया था। मगर अफसोस के इन 35 सालों में BHU खमाड़ी में स्टाफ की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकी। अवाम ने DHO ज़िला मानसहरा और अब अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि वो BHU खमाड़ी में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को पूरा करें और BHU खमाड़ी और वादी कलिस को जाने वाले रोड को कुशादा और पुख्ता करें। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ चंगेज़ खान तनोली, ABN न्यूज़, तनावल। उगी में सस्ते फौरी इंसाफ की फरहमी के लिए ADR ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद देखेंगे आसिफ खान की रिपोर्ट। उगी में लोगों को फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। ये इदारा जिसको ADR कहा जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल, ये कमिश्नर हज़ारा ने उसका क़याम अमल में लाया है और इस इदारे को भी सन 2020 एक्ट के तहत उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। हक वाले को समझाना है
उसकी काउंसलिंग करनी है, और अगर उसको समझ आ जाए और वो अपना हक काम को छोड़ दे तो ये माशरे के अंदर बेहतरी होती है। ADR अरकान के मुताबिक इस कौंसिल को सिविल फौजदारी दोनों तरह के मुकदमात की समाअत का इख्तियार होगा और इससे अदलिया पर भी मुकदमात का दबाव कम होगा। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। वादी कैलाश चित्राल की सारा जबीन विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया। तारीख साज कामयाबी, क्रिकेट की दुनिया में एक अहम संग मील अबूर। मजीद देखेंगे फताहुल्लाह की रिपोर्ट। बाउंड्री के बाहर गई। चित्राल के कैलाश कबीले की पहली खातून क्रिकेटर सायरा जबीन ने क्रिकेट की दुनिया में एक अहम संगमील अबूर किया है। सायरा जबीन ने ICC वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के तरबियाती कैंप में अपनी जगह बनाई है, जिससे पूरे चित्राल का सर फक्र से बुलंद हो गया। इन स्विंग करने की कोशिश की, शानदार स्ट्रेट ड्राइव और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर गई। ये बेहतरीन शॉट है आज के दिन का सायरा कम। सायरा ने अपने खेल और मेहनत से क्रिकेट के मैदान में शानदार कामयाबियां हासिल किए हैं और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए नई राहें हमवार किए। बिल्कुल बॉलर के बराबर से खेला, मिड ऑफ के लिए भी कोई मौका नहीं, अच्छे से जज किया जो स्विंग थी बॉल पे। सायरा का ताल्लुक वादी कैलाश के इलाका रंबोर से है, जहां क्रिकेट खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड्स और सहूलतें दस्तियाब नहीं। इसके बावजूद सायरा ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमायां कामयाबियां हासिल करके अपनी मेहनत और अज़म को साबित किया है। फताहुल्लाह, ABN न्यूज़, लोअर चित्राल। लोअर दीर हेडक्वार्टर तिमरगरा में गुज़श्ता 1.5 माह से जारी फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। फाइनल मैच में तिमरगरा यूनाइटेड ने चकदरा लीग सफर के मुकाबले में 1 गोल से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मौके पर मकामी मुशरान के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मेहमानान ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए कैश प्राइजेस का ऐलान किया, जबकि विनर और रनर अप टीमों और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, शील्ड्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। कोहाट में खेला जाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप शनवारी फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। मेहमानान खसूसी शहरयार खान अफरीदी और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल अकरम चित्राली ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए हैं। देखेंगे अब्दुल बासित की रिपोर्ट में। कोहाट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें 45 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में शनवारी फुटबॉल क्लब ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। मेंबर कौमी असम्बली शहरयार अफरीदी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की। देखिए, जब मैदान खेल के मैदान आबाद होते हैं तो वो कौमें बावकार और उनकी इज्जत दुनिया करती है। हमने जवानों को हौसला देना है, उनको मौके देने हैं और इस टूर्नामेंट में 46 टीम्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने बताया कि वो फुटबॉल के साथ साथ दूसरे खेलों की रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन और सनसनीखेज मैच आपके सामने ये चल रहा है। नौजवान अपने जवान मर्दी और सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। हम कोहाट में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हर मैदान में, हर ग्राउंड में नौजवानों को आगे ले जाने के लिए एक्टिविटीज़ मुरतब किए हुए हैं। उनमें से एक ये है। कोहाट हमेशा से फुटबॉल का गढ़ रहा है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस खेल की बहाली और कामयाबी के लिए ज़िले इंतज़ामिया और मेंबरान असम्बली अपना किरदार अदा करें और खिलाड़ियों को मतलूबा सहूलियात दें। अब्दुल बासित, ABN न्यूज़, कोहाट। रुस्तम में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खैरबाद में इंसदाद मुनशियात के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और अहले इलाका ने शिरकत की। देखते हैं रुस्तम से उमैर खाकसार की ये रिपोर्ट। सुदम लोया जरगा के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खैराबाद रोस्तम में इंसदादी मुनशियात के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जरगा के अहदेदारान, स्कूल तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी इसी रोस्तम दाऊद खान, सुदम लोया जरगा के सदर हिम्मत अली खान और दीगर ने कहा कि मुनशियात एक लानत है, तलबा इस लानत से दूर रहे। नशा में रसवाई, बेइज्जती और तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान को मुनशियात पाक पाकिस्तान हमें चाहिए, और हमने इन बच्चों को जो यहाँ पे तकरीब हुई थी उसको अवेयरनेस के लिए आए थे सुदम लोया जरगा कि जो इस माशरे में मंशियात तो जो उस पर सब कुछ खराबियाँ उधर ही होती है। तो मैं अपील करता हूँ सारे पाकिस्तान के बच्चों को, बड़ों को, छोटों को कि मुनशियात से पाक पाकिस्तान चाहिए। मुआशरे से मुनशियात की रोकथाम हो सके, इस मकसद के लिए
बहुत से साथी आए हुए थे, उन्होंने अपने नज़रियात का इजहार किया और उनके बयान से ये वाज़ हुआ कि मुंशियात माशरे के लिए बुरी चीज़ है, ये हमारे माशरे को खोखला करती है, इसलिए हमें चाहिए कि मुंशियात का रोकथाम करें। मुकर्रिरीन ने कहा कि तलबा मुल्क के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगी, इसलिए अपने जिस्म नशाआवर चीज़ों से पाक रखे अपने तालीम पर तवज्जो दे, स्कूल वक़्त के बाद खेल कूद में हिस्सा ले, जिससे आप मंशियात से बच सकते हैं। कैमरा टीम के साथ उमेर खाकसार, ABN न्यूज़, रोस्तम मर्दान। सखर में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सखर मोहम्मद बख्श राजा धारेजो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा इमदाद परपोटो और दीगर ने शिरकत की। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी साहिल जोगी ने भी तकरीब में शिरकत की। शुरा ने ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह का केक भी काटा। नवाबशाह में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरयार गिल मेमन थे, जबकि HM ख्वाजा टाउन के चेयरमैन सैयद आतिफ जैदी ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद ने ABN न्यूज़ को मुबारकबाद दी। मज़ीद जानेंगे बिलाल अहमद कुरैशी की रिपोर्ट में। ABN न्यूज़ के दूसरी सालगिरह के मौके पर न्यूज़ ऑफिस नवाबशाह में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद थे, टाउन चेयरमैन सईद आतिफ ज़ैद तकरीब में शिरकत की। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुबारकबाद दी। मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया ABN न्यूज़ को उनकी दूसरी सालगिरह पर। आपको, आपके इदारे को, आपके तमाम मुंतज़मीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी आपके वर्कर्स हैं, आपके सहाफ़ी दोस्त हैं इस चैनल से मुंसलिक, उनके लिए बेस्ट विशेस। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप लोगों का चैनल जो है वो आगे तरक्की करे और आप लोगों पर, आप लोगों के बड़ों के साया कायम रहे। HM ख्वाजा टाउन के चेयरमैन सैयद आतिफ जैदी ने भी ABN न्यूज़ के 2 साल मुकम्मल होने पे खुसूसी तौर पे मुबारकबाद दी। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पे जो नवाबशाह के नुमाइंदे हैं और ABN की जो मैनेजमेंट है, उन सबको मुबारकबाद। ABN न्यूज़ जो है ये एक सहाफ़ती बेड़े में एक अच्छा इजाफ़ा है, और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो बड़ी मस्बत है, और आवाम के इशूज़ जो हैं उस हवाले से ABN का एक नुमाया किरदार भी रहा है। और हम दुआ गो हैं कि ABN न्यूज़ और उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो आवाम के मसाइल हल करने में अपना नुमाया किरदार अदा करेंगे। ABN न्यूज़ पर नवाबशाह के मसले मसाइल पर बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो कवरेज की जाती है, और मैं बिलाल कुरैशी भाई से उम्मीद करता हूँ कि ये इनका जो मिशन है वो आइंदा भी जारी रहे। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की तकरीब ब्यूरो ऑफिस नवाबशाह में रखी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरयार गुल मेमन और HM ख्वाजा टाउन के चेयरमैन आतिफ हुसैन जैदी ने शिरकत की। साथ ही कैमरा टीम के साथ बिलाल अहमद कुरैशी, ABN न्यूज़, नवाबशाह। दादू की टाउन कमेटी बलेची स्टेशन अहम बुनियादी मसाइल का शिकार। बिजली के अदम फरहमी की वजह से पीने के मीठे पानी की शदीद किल्लत, जबकि ड्रेनेज का निज़ाम भी बिजली पर मुनहसर होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद देखते हैं मुबीन बनहर की रिपोर्ट। दादू की टाउन कमेटी फुलजी स्टेशन आम बुनियादी मसाइल का शिकार। जन में बिजली ना होने, पीने के मीठे पानी की शदीद किल्लत शुरू होने लगी, जबकि ड्रेनेज का निज़ाम बिजली पे होने से शहरी को मुश्किलात का सामना। जबकि टाउन चेयरमैन की कोशिशों से काफ़ी मसाइल हल होने के बावजूद सोलर सिस्टम ना होने से पीने के पानी और ड्रेनेज का मसला ताहाल जारी। इस मौके पर टाउन चेयरमैन अली काजी और शहरियों ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हमारी तो यही कोशिश है कि हम अपने शहर को बेहतर से बेहतर बनाएं। जितनी भी यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो हम यहाँ पे लोगों को मुहैया कर सकें। पूरे स्ट्रीट्स जो है पेवर ब्लॉक है, लेकिन अभी जो है हमें जो चाहिए वो ये है कि हमें वाटर सप्लाई की स्कीम चाहिए और ड्रेनेज। मेन मसला होता है पानी शहर का, उसके लिए ये बिजली का निज़ाम जो है यहाँ पर सोलर का निज़ाम किया जाए, ताकि बिजली की जो है पानी हर घर में मुहैया हो। बिजली के हिसाब से पानी कभी आता है, कभी नहीं आता है। अपने टाउन कमेटी फुलजी चेयरमैन के और शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत हमारे टाउन से जुड़ी हुई मसले अवलियत की बुनियाद पर हल करे। कैमरामैन सनाउल्लाह बच्चल पौर, कैमरा मुबीन पौर, ABN न्यूज़ दादू। महकमा सयाहत और सकाफत हुकूमत सिंध की जानिब से थर में सयाहत को फ़रोग देने के लिए कराची से रवाना होने वाली पहली डेजर्ट सफारी ट्रेन का मीरपुर खास पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। तफसीलात आतिफ बलूच की रिपोर्ट में।
تھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے محکمہ سیاحت و ثقافت سندھ کی جانب سے چلائی جانے والی پہلی ڈیزرٹ سفاری ٹرین کراچی سے مقامی سیاحوں کو لے کر میر پرخاس پہنچی، جہاں شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے ٹرین کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر کمشنر میر پرخاس فیصل احمد اکیلی نے کہا کہ سیاحت ایک اہم شعبہ ہے، یہ ٹرین تھر میں سیاحت کے فروغ کی جانب پہلا قدم ہے۔ ٹرین جو ہے وہ سندھ کی ثقافت کو بہت اجاگر کرے گی، اور جو ایک سندھ میں جو محبت اور پیار کا جو پیغام ہے، ایک بھائی چارگی ہے، اور کس طریقے سے ہمارے سندھ کے اندر جتنے بہترین ٹورزم کے جو پوائنٹس ہیں، ٹورزم کی اکنامکس جو ہے، اس اکنامی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے اندر یہ بہت بڑا اس کا کردار ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب کی جو ہے اس میں کامیابی ہوگی۔ ڈی آئی جی میر پرخاس محمد زبیر دریشک کا کہنا تھا کہ ٹرین میں آنے والے سیاحوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک منظم سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے اور سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ روٹ کے اوپر بھی، روٹ کے علاوہ بھی پیٹرولنگ بھی انہینس کر دی ہے۔ جو ہمارے ریلوے اسٹیشن ہیں وہ بھی جہاں پہ یہ لوگ سٹے کریں گے اس جگہ پہ بھی ہر جگہ پہ ریٹن ایک ڈاکومنٹڈ سیکیورٹی پلان ہے جو ایشو کر دیا گیا ہے تمام اضلاع نے، اور اس میں تمام لوگوں کو جو پولیس ہے ڈپلائڈ بھی ہے اور بریف بھی کر دیا گیا ہے۔ میئر عبدالرؤف غوری نے کہا کہ صوبائی وزیر سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کا یہ احسن اقدام ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ میر پرخاس کے سیاحوں کو بھی سیر کا موقع ملے۔ میر پرخاس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہمارے منسٹر صاحب کو کہیں گے کہ یہاں سے بھی ہمیں جو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ وہ بھی آگے جا سکیں۔ سیاحت کو بڑھانے کے لیے یہ سفاری ٹرین ہفتہ وار کراچی سے چلائی جائے گی، جس سے نہ صرف سیاحتی مقامات کو سہارا ملے گا بلکہ سیاحت کے ذریعے پیدا ہونے والی معیشت کو بھی تقویت مل سکے گی۔ سفاری ٹرین میں معروف اداکار ایوب کھوسو بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین نعمان جھنڈیر کے ساتھ عاطف بلوچ، ABN نیوز، میر پرخاس۔ بلوچستان کے رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں بہرخان محکمہ زراعت کی نااہلی اور مقامی انتظامیہ کی مداخلت کے باعث بہرخان کے عوام کو سالانہ کروڑوں اربوں کا نقصان۔ پچھلے ایک سال سے ضلع بندی ہونے کی وجہ سے بہرخان کے کسانوں کو کھاد کی سپلائی بند، عوام مہنگے داموں میں کھاد خریدنے پر مجبور۔ شیر احمد کھیتران کی رپورٹ دیکھیے۔ قدرت سے مالا مال بہرخان اب خستہ حالی کی طرف رواں دواں ہے۔ یہاں پر تیار ہونے والی فصلوں میں گندم، ٹماٹر، پیاز، آلو اور سیب کے باغات تیار ہوتے ہیں۔ پچھلے ایک سال سے مقامی انتظامیہ کی مداخلت اور کسٹم حکام اور زراعت کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پر گندم میں اور سیبوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع بندی ہونے کی وجہ سے ایک سال مکمل ہو گیا، بہرخان کی عوام کو سالانہ کروڑوں روپوں کا نقصان بھگتنا پڑا۔ اس سال بھی گندم کی فصل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہرخان میں ضلع بندی ہونے کی وجہ سے پچھلے ایک سال سے کھاد کی سپلائی بند، مقامی لوگ کھاد کو مہنگے داموں میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ مقامی لوگوں کا وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان اور وزیر اعظم سے بہرخان شہر کو کھاد سپلائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس سال بھی اگر ہمیں کھاد وقت پر نہیں ملی تو ہمیں کروڑوں روپوں کا نقصان ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیر احمد کھیتران، ABN نیوز، بہرخان۔ ڈسٹرکٹ ایسپیلا شہدائے پولیس فٹ سال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل جے بلوچ فٹ بال کلب بیلان میں ینگ شاہین کلب اوتھل کو ہرا کر جیت لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی SSP لسبیلا کیپٹن ریٹائرڈ نوید عالم نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ٹورنامنٹ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ایسے کھیلوں کے مقابلے اہم قرار دیے۔ تقریب میں کھلاڑیوں اور منتظمین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے وفاقی اتحادی حکومت کو ایک سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ سب نے مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکالا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر کیا گیا۔ سپہ سالار پاکستان جنرل عاصم منیر نے اپنے بھرپور معاونت فراہم کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا۔ پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ایک دن مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہوگی اور خدا داد پاکستان کا حصہ بنے گا۔ تتا پانی میں پرائیویٹ سکولز میں زائد فیسوں کی وصولی اور دیگر مطالبات کے حق میں طلبہ باہر نکل آئے۔ میلاد چوک تتا پانی سے تمام روڈز کو بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ ٹریفک مکمل جام، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ روڈز کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ طلبہ مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زائد فیسوں کی وصولی کسی صورت قبول نہیں۔ پرنٹ کاپیاں، کتابوں اور یونیفارم کے نام پر لوٹ مار بند کی جائے۔
लाहौर से नक्याल आने वाली निजी बस सर्विस के अमले के नारवा रवैये और बढ़ते हुए किरायों पर शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बस के अमले ने मुसाफिरों से सफरी बैग और दीगर सामान का भी मुंह मांगे किराया वसूल करना शुरू कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान सरदार अब्दुल शकूर ने ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पलंदरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिद्धनोती के इलेक्शन में ज़रीफ असलम एडवोकेट ने मैदान मार लिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिद्धनोती के सदर मुंतखब हो गए। कुल 92 से 90 वोट पोल हुए हैं। ज़फ़ीर असलम एडवोकेट 49 वोट लेकर सदर बार मुंतखब हो गए। तहसील बार एसोसिएशन खोईरेटा के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जहां ज़हूर अल हक चौधरी 47 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी ज़फ़र एडवोकेट ने 42 वोट हासिल किए। कुल 110 वोटों में से 91 वोट पोल हुए और 2 वोट मुस्तरद किए गए। दीगर ओहदों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिनमें नायब सदर मोहम्मद ताहिर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी वकास हसनैन एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी वकास हुसैन एडवोकेट, सेक्रेटरी नशर व इशात सुमेरा कौसर एडवोकेट, सेक्रेटरी लाइब्रेरियन मोहम्मद दानिश महमूद एडवोकेट शामिल हैं। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर वादी नीरा में भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। नायब सदर MSF ने केक काटा। तकरीब में नायब सदर MSF ज़ुहैब अहमद, क्रिकेटर मलिक निसार अमान और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने ABN न्यूज़ को कामयाबी के साथ 2 साल मुकम्मल करने पर चेयरमैन ABN न्यूज़ मेहताब खान का भी शुक्रिया अदा किया। तत्तापानी आज़ाद कश्मीर में नाकस आटे की सप्लाई पर शहरी सरापा एहतजाज। अहले इलाका के मुताबिक महकमे खुराक आज़ाद कश्मीर ने अवाम को नाकस और मुज़र सेहत आटे की सप्लाई शुरू कर दी, जिसके इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हेडक्वार्टर अस्पताल डडियाल खराबियों की निशानदही पर दिलबर्दाश्ता MS डॉक्टर नदीम फजल दाद ने भी तबादले की दरख्वास्त कर दी। तहसील डडियाल हेडक्वार्टर अस्पताल अवामी शिकायत की भरमार, नामुकम्मल इंतजामात होने की खबर पर MS डडियाल ने कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर वजूहात की बुनियाद बनाकर जहनी दबाव में आने समेत माहौल को नाखुशगवार करार दे दिया। SSP राजा इरफान सलीम के रिटायर्ड होने पर राजा मनाफ खान की तरफ से भिम्बर में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने राजा इरफान सलीम के अवाम के लिए किए गए इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश किया। 1 साल कबल हजीरा के इलाके भंगुबारी के मकाम पर मोटरसाइकिल हादसा, जहां भाग होने वाले नौजवान के वालिद ने बच्चे की याद में हेलमेट तकसीम करना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल हजीरा में भंगुबारी के मकाम पर 1 साल पहले हादसे का शिकार हुआ था। भिम्बर वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर ने महकमा एंटी करप्शन के ज़ेर तमाम खुली कचहरी में साइलिन की शिकायत सुनी और हल के लिए अहकामात जारी किए। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर का कहना था कि वज़ीर आज़म चौधरी नवारुल हक की क़यादत में अवाम को हर शोबे में रिलीफ देना अवलीन तरजीह है। करप्शन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और रिश्वत लेने वाले एहलकारों को नौकरी से फारिग किया जाएगा। कर्नल वक़ार अहमद नूर ने अफसरान को हिदायत दी कि साइलिन की फाइल्स को अल्तवा में न रखा जाए और तमाम केसेस 1 माह में निपटाए जाएंगे। चिलास में एलिमेंट्री बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान के नताइज के खिलाफ फेल होने वाले तलबा ने दोबारा एहतजाज किया। तालिब इल्म रहनुमा आबिद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा को असातिज़ा की कमी, क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब की कमी का सामना है और एक क्लास में 180 तलबा को बिठाया जाता है। उन्होंने कहा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इंसाफ फरहम किया जाए। तलबा ने शाहरा कराक्रम को बंद करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने आबिद राजा को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में रिहा कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में 125 स्कूलों में से 53 का नतीजा 0% रहा। 5वीं जमात के 125 स्कूलों में से 6 स्कूलों का नतीजा 100% रहा।